Okay. Let me tell you first thing, an important thing, that there are consecutive three chapters which are in line with each other and which are associated with each other. There's six, seven, and eight chapter. We know that the term energy is known as ability to do work. Work. There are two types of energies, which are mechanical energy and electromagnetic energy. Mhm. ठीक है? The energies which are dependent on medium are mechanical energies, and which are independent of medium are known as electromagnetic energies. ठीक है? What do we mean by dependent on medium and dependent on independent of medium? Let's say, let's discuss light. Do light require any medium for its traveling? No. Light is a form of energy. So such energies which are independent of the medium are known as electromagnetics, and the ones which are dependent on medium are known as mechanicals. ठीक है? For example, sound. Is sound medium dependent or independent? Independent. Do you Medium think you independent. can we can talk in space to each other? Yeah. You Maybe. can. Let's send Munib in the space and see if he could talk to us over there. Anyhow, sound is a medium dependent thing. For example, we are going to study that in detail in the later chapter as well. For example, we have taken a glass chamber and we have an electric bell into that, and that chamber is attached to a vacuum. ठीक है? When the vacuum is turned on, we will observe that the sound intensity is getting lower and lower. And there would come a point Also, where when all of the air is removed from this chamber, we will not be hearing any sound, even though the bell is still ringing. ठीक है? So sound is so medium. basically, independent energies are which can travel without, like, which can travel in a vacuum. Yeah. Okay. So electromagnetic and mechanical energies. And we are very much familiar with the very basic two types of energies, which are those kinetic energy and potential. Gravitation. kinetic energy, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? वन वर्ड में, ड्यू टू Gravity. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है? And its formula is 1 by 2 mv square, where m is the mass, v is the velocity. Okay? Then potential energy is defined as energy possessed, yeah, energy due to Height. position of an object, position or height with respect to Earth. Potential energy has a unit of, basically unit kya no, gravitational potential energy normally we discusses, and it has a formula of mgh. Energy in either state has a unit of joules, and joule is Oh, equals to yeah. kilogram meter square per second square. Oh, sir, it's like, न्यूटन oh, मीटर भी okay. लिख I सकते हैं think हम लोग we इसको. can. बिकॉज देखो एम जी किसकी इक्वल होता है? न्यूटन्स के. और एच किसकी इक्वल होता है? मीटर के. तो हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं. ठीक है? जॉल भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर्स भी लिख सकते हैं. एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. Scalar quantity. ठीक है? वी हैव डिस्कस दैट इन द एमसीक्यूज इन द प्रीवियस क्लास एज वेल. Yes. Zainab, you were saying something? No, sir, I was answering. Okay.
Then there is two important concepts in this chapter that we need to understand and maybe memorize a little bit of it. That is energy stored and energy transfer. Transfer. ठीक है? As the name indicates, what comes to your mind? What would be the meaning of energy store and energy transfer? What Sir, comes to your Energy mind? energy, storage. Hmm? sir, energy transfer like एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हाँ, होता you है can वैसा only कुछ। transfer it, and energy storage that you could store that energy. ठीक है? And the Oh, examples of energy store and energy transfers are somewhere here. Kinetic energy, gravitational potential energy, chemical energy, elastic potential energy, nuclear, internal, electrostatics are all energy stores that you can store these energies. Okay. And energy transfers are those which can only be transferred from one type to the other. You cannot store this form of energy. In the meantime, let me give you an overview of the energies that is discussed here. Kinetic energy and potential energies तो हमने discuss कर ली हुई है. जो chemical potential energy होती है, it is the energy stored due to the position of atoms. ठीक है? In a compound में जो position of atom होता है, उसकी वजह से जो energy stored होती है, that is known as chemical potential energy. chemical. इसको C dot P dot E कहते हैं. Chemical potential energies further उसके दो stores को discuss किया जाता है. One is food and the other one is batteries. They Oh, both have chemical potential energy stored into them. Chemical potential energy क्या होता है? Due to arrangement of of atoms. atoms in a structure. ठीक है? एक्सक्यूज मी It is सर। a form of an energy stored. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, ये अब यहाँ पे ये भी देख लो कि पोटेंशियल एनर्जी की तीन टाइप्स हैं, कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है ईपीई से, एंड इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड और Oh, compressed स्प्रिंग. इनके फॉर्मूलाज भी होते हैं बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अब ये सब एनर्जीज हैं तो इन सबके यूनिट्स भी क्या होंगे? जाउल्स ही होंगे. दे वुड ऑल बी स्केलर क्वांटिटीज. न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर oh, होती है. न्यूक्लियर एनर्जी एज द नेम इंडिकेट्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, ड्यू टू nuclear energy is further divided into two parts. You might have heard about it as well. Fission energy and fusion energy. ठीक है? Fission energy is defined as, अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में जो oh, एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज नोन एज फिशन एनर्जी. सॉरी, न्यूक्लियर एनर्जी. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, फिश फिशन एनर्जी एंड फ्यूजन एनर्जी. फिशन को डिफाइन किया जाता है व्हेन a larger nucleus breaks to form two smaller nuclei. yeah. ठीक है? एक बिगर न्यूक्लियस ब्रेक Oh, डाउन होकर टू स्मॉलर न्यूक्लियस में स्प्लिट अप होगा, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज फिशन एनर्जी. फ्यूजन एनर्जी इज डिफाइंड व्हेन इट्स द ऑपोजिट ऑफ फिशन. ठीक है? व्हेन two small nuclei combine combined together. to give a bigger nucleus. This fusion एक्सक्यूज मी is सर। only possible in sun. Sun के अलावा it's not possible anywhere, because to initiate this reaction we need a lot of energy and temperature and pressures that cannot be produced on Earth. इसमें फ्यूल हमारे पास क्या होता है? टू हाइड्रोजन्स कंबाइन टू गिव हीलियम. ठीक है?
और साथ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बोथ फिशन एंड फिन आर द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो ग्रीन हाउस गैसेज, नो इम्पैक्ट टू द सराउंडिंग, नो इम्पैक्ट टू द एनवायरमेंट। बट फिशन का एक ड्रॉबैक है कि इवन व्हेन द फ्यूल इज यूज्ड, उसके लिए जो फ्यूल यूज करते हैं यूरेनियम, यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म, दिस एटम एज वेल। जो यूरेनियम है, इवन आफ्टर यूज उसके अंदर इतनी रेडिएशंस एग्जिस्ट करती हैं दैट इट्स नॉट सेफ टू यू टू डिस्पोज एनीवेयर। तो हम जहां भी उसको डिस्पोज करेंगे सराउंडिंग एरिया लिवेबल नहीं रहेगा। Oh, okay. इंटरनल एनर्जी को कहते हैं सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट a सिस्टम possess। आई डोंट नो possess का स्पेलिंग यही होता है कि नहीं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है एनर्जी बिटवीन द। Oppositely charged यस। atoms. रेडिएशन इज रेडिएशन, लाइट को कहते हैं। थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी को कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो चार्जेस के फ्लो की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वो क्या होता है। आर यू क्लियर अबाउट व्हाट एनर्जी स्टोर्स एंड एनर्जी ट्रांसफर्स आर? ओ, वी हैव द definitions here as well if you need it. If you stretch a rubber band becomes a strain energy, and नहीं, अच्छी नहीं है, बट Excuse द me, sir. एनर्जी स्टोर्ड इन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बिकॉज नॉर्मली जो थर्मल एनर्जी होती है, इट अकाउंट्स फॉर द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, बिकॉज दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं थर्मल एनर्जी के ऊपर। ऑब्वियसली जब आप किसी सिस्टम को हीट एनर्जी दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी पार्टिकल की, एट द सेम टाइम उनकी पोजिशंस भी चेंज होंगी। सो it accounts for both. So whenever thermal energy is directly related with the internal energy, so when you increase the temperature of the system, it increases the internal energy of the system as well. उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, इन उन्होंने प्रॉपरली नहीं डेफिनेशन दिया हुआ, बट न्यूक्लियर फिशन को जरूर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। तो यूरेनियम वगैरह उसको डिस्कस किया हुआ है। Uh, यस। सर हर चीज तो एटम से बनी होती है, तो हर चीज में नहीं होनी चाहिए केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जिस तरह आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है ना कि कार्बन ग्रेफाइट में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, कार्बन डायमंड में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट दे बोथ हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। एवरीथिंग इज मेड अप Okay. ऑफ एटम, बट उनकी अरेंजमेंट की वजह से उनमें एनर्जीज जो हैं, मतलब थिंग्स वेरी। ठीक है। Yes. Sorry, I have a question. यस। We said that the transfer energies cannot be stored. यहाँ पर इसमें यहाँ पे एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर शो किए हैं। केमिकल एनर्जी क्या थी? स्टोर्ड एनर्जी थी। व्हेन इट स्टार्टेड रनिंग, Mm. दैट केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। Okay, ठीक है। okay. सो देयर इज वन वेरी मेजर कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट टेल अस। अब देखो इसके अंदर भी, whenever we turn on or left, electrical energy is a transfer। ठीक है। दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। ठीक है। आगे हम जाके वेस्ट एनर्जीज को भी डिस्कस करेंगे। अब ऑब्वियसली व्हेन वी आर टर्निंग ऑन अ लैम्प, डू वी नीड द हीट एनर्जी? No. बट इट्स प्रोड्यूसिंग एनीवे, सो दैट मींस इट्स अ वेस्ट एनर्जी। सर इसका ये भी रूल होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल्स है, तो वो, अगर वो इक्वली डिवाइड भी नहीं होगी लेकिन एंड पे वो इक्वली होगी ना दोनों को मिला के। हाँ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे। समवन हैज डन होमवर्क, या अभी पढ़ा है? नहीं सर, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है शायद ग्रेड 8 में। यहाँ पे उन्होंने इन कॉन्सेप्ट को एक डिस्कस किया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड सर्कल दैट आउट।
कि energy could be transferred in by four ways, which is we can transfer energy by a force, we can transfer energy by radiation, we can transfer energy by heating, we can transfer energy by electrical current. So there are four ways through which we can transfer the energy. Which are two ways? We can transfer the energy through force, through Radiation, through heat. radiations, through heat, and through electrical current. Since we are on electrical current, देख लेते हैं what does it mean? An electric current is a convenient way of transferring energy from one place to another. The electricity may be generated in a power station many kilometers away from where energy is required. Alternatively, an electric current transfers energy from the chemical energy store of a flashlight bulb to the internal energy of the bulb. This increased internal energy store of the bulb is transferred to the surrounding via light radiations. So chemical potential energy किसमें convert हुआ? Internal energy Internal of the bulb energy. में, that internal energy of the bulb is transferred into the radiations which is being Radiation. seen in the bulb. Radiation के through light is a form of energy, so we can pretty much explain that light energy is transferred through radiations. Radiation. हीटिंग के थ्रू भी हमें पता है whenever we heat any substance तो kinetic energy and potential energy उसमें ट्रांसफर होती है, उसमें उनकी energies जो है वो increase या decrease होती हैं respectively. And if we talk about the force तो हमें पता है by force हम energy को हमेशा ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसकी बेस्ट एग्जांपल है work which is the very last chapter of the block, मतलब जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है measurements and physical quantities का. So whenever we apply a force onto an object, that object moves in that direction. ठीक है, और in that direction और there is some motion in the object. तो through force हमने उसमें energy को क्या किया, ट्रांसफर कराया, but that energy would be called mechanical energy. So energy could be Okay. transferred to an object by force, by heat, by radiation, and lastly by electric current. अब सी, these are the flow diagrams जो आपको आनी चाहिए. अब chemical energy stored in the battery has been converted into electrical energy. वो जो हमने ऊपर पढ़ा भी है, that is converted into internal energy of the store, that is converted into the light energy and internal energy stored. अब obviously जब light on होगा तो surrounding temperature भी क्या होगा, increase होगा. ठीक है, और जो ये internal energy of the bulb है, it is converted into thermal energy and internal energy stored उसमें भी convert हो रहा है हमारे पास. ठीक है, सो ये Okay. एनर्जी ट्रांसफर्स उन्होंने डिस्कस किया. बल्ब, फ्लैश लाइट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं. सेल्स में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी. जब Chemical आप बटन को energy. ऑन करते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट Electric. इलेक्ट्रिकल एनर्जी appears as the increase in the internal energy store. क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टोर है ना Okay. हमारे पास, या ट्रांसफर है. So, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होके इंटरनल एनर्जी में विच इज अ स्टोर, विच इज अगेन इंटरनल एनर्जी किस में फिर कन्वर्ट होती है, थर्मल में भी होती है और लाइट में भी होती है हमारे पास. ठीक है, वो उसने एक ही टाइम में बता दिया कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टोर में कन्वर्ट हुआ वो थर्मल एनर्जी में भी ट्रांसफर होगा और वो लाइट में भी ट्रांसफर होगा. अब लाइट भी इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब वो लाइट से सराउंडिंग में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, थर्मल से भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. दोनों हमें पता है, जहां पे लाइट है वहां पे रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस हैं जहां पे वहां पे हीट है ही है. ठीक है, सो उसने बेसिकली ट्रांसफर और स्टोर को डिस्कस किया हुआ कि कैसे इस ट्रांसफर और स्टोर हमारे पास आते हैं किसी के अंदर. अब एक और इन्होंने एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे. रोवर्स वगैरह के लिए बेसिकली उन्होंने डिस्कस किए हैं कि रोवर्स के अंदर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर रखते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो आपको पता होगा बैटरीज, यूरेनियम और ये रेडिएक्टिव बैटरीज जो होती हैं दे कुड लास्ट वेरी लॉन्गर. तो रेडिएशन है, न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली रेडिएशन एमिट करता है, तो वो सबसे पहले किस में ट्रांसफर होंगी, थर्मल एनर्जी के अंदर. थर्मल एनर्जी वुड बी
result as an increase in the internal energy stored. और जब भी internal energy होता है उसके again दो parts होते हैं, one which we are going to use and which is a waste energy. तो normally ये waste को indicate कर रहे होते हैं, ये हमारी useful energy को discuss कर रहे होते हैं. अब दैट इज, अब थर्मोकपल आप लोगों ने पढ़ा नहीं वैसे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, तो बस एक अंडरस्टैंडिंग कर लो कि जब इंटरनल एनर्जी में आएगा तो अब दिस इज माय यूजफुल थर्मल एनर्जी, दिस इज माय वेस्ट थर्मल एनर्जी. ठीक है, बिकॉज थर्मोकपल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर्स, वेरी हाई टेम्परेचर विद वेरी ग्रेटर एक्यूरेसीज के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं. ठीक है, उसके अंदर दो मेटल यार स्ट्रिप्स अटैच्ड होते पढ़ा हैं. ना, सॉरी, हमने भी नहीं पढ़ा ना। थर्मोकपल्स ये आपके सिलेबस से आउट हो गए थे, तो बट उन्होंने एग्जाम्पल में उसको डिस्कस किया. तो जस्ट फॉर द नॉलेज, थर्मोकपल हमारे पास क्या होती है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर्स विद वेरी हाई एक्यूरेसी. जैसे आपने वोल्कानिक एरप्शंस के टेम्परेचर्स को मेजर करना है या कुछ इस तरह के मेजर्स करना है, तो बेसिकली थर्मोकपल एक डिवाइस होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस को मैकेनिकल, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमें शो करती है. ठीक है, उसमें दो मेटल्स होते हैं जो टेम्परेचर डिफरेंस की बेसिस पे करंट जनरेट करते हैं और फिर हम उनको कैलिब्रेट करके टेम्परेचर्स मेजर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, ठीक है। तो अब देखो थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई हुई, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, और जहाँ पे थर्मल एनर्जी है वहाँ पे वेस्ट एनर्जी भी होगी होगी. तो ये जो डाउनवर्ड्स एरो बने होते हैं ना, नॉर्मली ये किसको शो कर रहे होते हैं? वेस्ट एनर्जी को, विच इज नॉट द समथिंग दैट वी रिक्वायर, बट इट्स हैपनिंग एनीवे. ओके, and this is the last of the principle of conservation of energy. One of the definitions given here, conservation of energy is defined as an energy transfer, the total amount of energy before and after the transfer is constant. हम इसको in other words ये भी explain कर सकते हैं, energy cannot be created Only nor be conserved. destroyed, it could only be converted Oh yeah. from one form So another. to another. That there is not a single form of energy on this planet that we have created, we are only utilizing it. तो वो दोनों टर्म्स में आ सकता है, either it's a store or either it's a transfer. We can only convert it from one form to another, we cannot destroy that energy. So even that waste thermal energy that we have discussed above is becoming the part of the surrounding, is becoming the part of the universe. Entropy का एक टर्म यूज होता है जो इंस्टेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट के लिए वर्ड यूज होता है. तो जो आपका थर्मल एनर्जी जो एज अ वेस्ट प्रोड्यूस हो भी रहा है, इट इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स नहीं बोलेंगे, अर्थ का बात करेंगे, तो उस सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, सो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना. अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, सिंस वी हैव डिस्कस्ड दैट वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, तो हमारे जो दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं ये हमेशा आपस में क्या रहेंगे? Equal, but only when we are discussing the ideal cases. Okay, all of the input energy is converted to output energy. Real time cases के अंदर we know कि friction present होता है, so we cannot ignore that. This formula is only utilized when we know there is zero resistance, zero friction present. So normally we use these formulas to find out the velocity or height of the object. So if I'm finding out the velocity, तो ये mm से cancel out हो जाएगा. This m will be cancel out with this m, and v square किसकी इक्वल आ जाएगा? 2gh. और v किसकी इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट 2gh के. अब वो जो आपको फॉर्मूलाज मैंने स्टार्ट में एमसीक्यूज कुछ इग्नोर करवाए थे ना, और उसमें उसने हमें हाइट दी हुई थी और उसने कहा था वेलोसिटी कैलकुलेट करो, उसमें ये फॉर्मूला यूज होना था. Oh, okay. और अगर हमें h को कैलकुलेट करना है तो हमारा m तो कैंसिल ही रहेगा, h वुड बी इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर 2g.